So next question is like list and brief any 5 functions in JavaScript. तो जैसे array के हम लोगों ने बहुत सारे functions मैंने बताया आज, तो आप वो वाले functions भी आप दिखा सकते हो. So any functions जो हम लोगों ने अब तक देखे हैं, get element by id, that also one kind of like method or function. So जो भी function हम लोगों ने JavaScript में अभी तक देखे हैं, तो कोई भी 5 function आप explain करके वहाँ पे लिख सकते हो. The next question is explain how to create and read array elements in JavaScript. तो कैसे create करना है array element और उसके element को read कैसे करना है या print कैसे करना है, that also we have seen. The next is explain the different types, data types available in JavaScript. तो कल के lecture में we have seen like data types of JavaScript are of 2 types. What are that? If you see, we have seen here. So in last lecture I have seen like JavaScript have a 2 data type, primitive and non-primitive, and primitive के अंदर आता है string, number, boolean, undefined and null, and non-primitive के अंदर आता है object, arrays and regular expression. So this is a simple answer for this question. The next question is how to create an object in JavaScript. Explain with suitable example. So we have also seen how to create objects in JavaScript in yesterday's lecture, जिसमें हमने 2 मेथड्स मैंने बताए थे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, एंड उसकी वैल्यूज को अगर रीड करना है, प्रॉपर्टीज को रीड करना है, तो उसके भी 2 एग्जांपल्स हम लोगों ने कल चेकआउट किए थे. ओके, देन सेम हाउ यू कैन रीड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने कल ऑलरेडी देखे हैं. Then next is what is named function in JavaScript. How to define a named function. How many types of, yes, someone has raised hand. Vritti, do you want to ask some question? Vritti? No, ma'am. No, ma'am. Hello? No, ma'am. Okay. So next question is what is named function, उसको कैसे define किया जाता है, and how many types of function JavaScript support. तो हमने लास्ट आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था कि जो JavaScript के फंक्शन कौन से होते हैं, एक इज anonymous or unnamed function, then named function, name function with argument passing, and name function with return statement. So these are the 4 types. और named function यानी क्या होता है कि जिस फंक्शन को क्रिएट करते वक्त यू आर गिविंग सम नेम एंड यू आर कॉलिंग दैट फंक्शन बाय यूजिंग दैट नेम, and you can give a small example of how you are creating that function. The next question is what are the variable naming conventions in JavaScript. जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो जावास्क्रिप्ट में तो क्या रूल्स होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द नेमिंग कन्वेंशन. सो जिसके लिए हम लोगों ने कल ये वाला एक स्लाइड हम लोगों ने देखा था कि जब आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल का नाम देते हो तो सबसे फर्स्ट इज यू कैन नॉट यूज अ कीवर्ड्स. जो जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड्स होते हैं लाइक ब्रेक, बुलियन, फंक्शन, स्क्रिप्ट, these are the inbuilt some value और return, तो ये नाम आप वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो. सेकेंड, यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विथ अ नंबर्स. You can start a variable name either with a character or with a underscore. You can use the numbers in between, but not at the start. And again, variable names are case sensitive. So both these 2 variables are having a different meaning. So likewise, these are the different naming conventions. Again, this is for 5 marks. Then next question is, मैंने अब तक जितने आए हैं लाइक इन सेम एंड सेम बैकलॉग के पेपर, हर एक में जितने क्वेश्चन आए, आई हैव ट्राइड टू ऐड ऑल द क्वेश्चन. तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन HTML पेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ जावास्क्रिप्ट फॉर एक्सेप्टिंग 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन. यानी आपको क्या करना है, यूजर से 2 नंबर लेने हैं, तो आपको 2 टेक्स्ट बॉक्स लगेंगे और 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है. तो सबसे पहला बेसिक वाला कैल्सी अगर आपको याद होगा, जो हम लोगों ने शायद से ये वाला किया था, या यही वाला कोड हमने किया था. सो दिस इज सिंपल वन जिसमें हम लोगों ने
जो कुछ वैल्यूज अगर 2 टेक्स्ट बॉक्स में लिए और 4 बटन डाल दिए, प्लस किया तो प्लस, देन माइनस, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन, हर एक का आंसर हमको प्रोवाइड किया जाता है। और जिसका हम लोगों ने कोड जो है कैसे लिखा था, 4 फंक्शंस लिखे थे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 इनपुट, 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए थे, यहाँ पे नंबर के बजाय आप टेक्स्ट भी ले सकते हो, एनीथिंग यू कैन यूज, ओके। और 4 बटन हमने लिए थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड एवरी फंक्शन के क्लिक पे हमने एक अलग फंक्शन कॉल किया था, 4 फंक्शन कॉल किए थे। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने 4 फंक्शंस लिखे थे सेम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके। तो ये 2 चीजें जो है ये कॉमन रहेंगी हर एक केस में, जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स n1 और n2 की जो वैल्यू है पारसेंट से हम 2 वेरिएबल में डाल दिया। एडिशन होगा तो c इक्वल टू प्लस कर दिया, अलर्ट में एडिशन डाल दिया। यहाँ पे खाली क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन। ये एक स्मॉल एग्जांपल है, आप इसको आपके तरीके से भी लिख सकते हो, इससे और इजी, अगर आपको कोई चीज ध्यान में आती तो और अलग वे में लिख सकते हो। The next question is explain how to call JavaScript from an HTML page. Write a program to validate at least one text field for empty value. Same हमने जो यूजर नेम और पासवर्ड empty है कि नहीं वो चेक करने के लिए किया था, तो वैसा वाला ही कोड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। Then next is explain with, आप देखोगे हर इसमें एग्जाम्पल, they want in a JavaScript everything almost they asked with a example। इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये जब हमने लेक्चर्स हमने जितने भी लिए हैं तो हर एक का हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स या कोड करके हमने उसको ट्राई किया है रन करने का। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ टू एक्सेस वैल्यूज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स ऑफ फॉर्म यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, अगेन कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स लो और उसकी वैल्यू हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो सेम ये वाला भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जिसमें आपने एक सिंपल यूजर नेम ले लिया और एक बटन के क्लिक पे आपने क्या किया, उसकी वैल्यू को रीड किया और अलर्ट से जो भी वैल्यू आपने रीड की थी वो वैल्यू को आपने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर दिया, सिंपल। तो यूजिंग जावास्क्रिप्ट यू आर रीडिंग अ वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, उसके लिए हमने मेथड यूज किया है गेट एलिमेंट बाय आईडी। उससे हमने इस टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है उसको एक्सेस किया, वेरिएबल में स्टोर किया और उसको हमने प्रिंट किया। So this is a small example for this. Next question is write short note on JavaScript with its advantage and disadvantage. तो JavaScript क्या होता है, is it a client side programming language, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी हमने आज के मॉर्निंग के लेक्चर में यहाँ पे हमने लास्ट में 2 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं कि एडवांटेज क्या होता है यार, डिसएडवांटेज क्या होता है। सो ऑलमोस्ट हमने हर एक क्वेश्चन का आप आंसर प्रॉपरली लिख सकते हो, इतना सब हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ओनली वन क्वेश्चन वी हैव रिमेन्ड, ओके, एंड फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट, एंड दैट इज डिजाइन अ फॉर्म टू एक्सेप्ट वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन डिटेल from participant and validate any 5 fields using JavaScript। तो validation के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। So we'll see a small example how to validate a JavaScript, how to validate a HTML form using a JavaScript, and this is also a part of your practical number 4 part B। A में हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, B में हम लॉगिन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो डिजाइन करने वाले हैं। So we'll see a registration form, how to design it। तो registration form तो ऑलरेडी आप लोगों ने डिजाइन किया हुआ रहेगा, यहाँ पे शायद से मैंने एक बनाया है, ओके, यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो, जो लेक्चर नंबर 7 या 8 का अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, और आप लोगों ने काफी लोगों ने डिजाइन भी किया है। तो यहाँ पे हम ये वाला जो फॉर्म है वो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि कैसे मैंने डिजाइन किया है। सो सिंपल एक इंक्वायरी फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो लिया है, जिसमें मैंने टेबल के अंदर इसको डिजाइन किया है, जिसमें नेम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स है, फोन नंबर के लिए, ईमेल एड्रेस के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर यूज किया है, एंड देन रेडियो बटन एंड योर ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये आपको डिजाइन करते आता है ना सबको? Yes, ma'am.
अदर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, put in a chat box everyone अगर yes आता है तो. Okay, so very good. Almost many students have given that they are able to design this such kind of form. Okay, तो जैसे नेम के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया रहेगा, फोन नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल के लिए हम कौन सा बॉक्स लेंगे? टाइप ईमेल, राइट, इट्स ईमेल. डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट टाइम, डेट, सिर्फ डेट चाहिए. अगर आपको डेट टाइम दोनों चाहिए तो डेट टाइम, सिर्फ डेट चाहिए कैलेंडर में तो आपका टाइप क्या आएगा? डेट. अगर यहाँ पे हमको रेडियो बटन चाहिए होंगे तो रेडियो, इनपुट टाइप विल बी रेडियो, राइट. एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए it will be the select an option. Okay, so likewise मैं यहाँ पे सिर्फ डिजाइन कैसे किया है वो दिखा देती हूँ. जैसे यहाँ पे इनपुट टाइप जो नेम है, नेम के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है, उसको IDT1 दिया, और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लिखा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायर्ड? Compulsory. Field cannot be empty. Yes, you cannot make it empty. Okay, तो जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा और जब मैं क्लिक करूंगी, सो इट इज गिविंग मी अ एरर मैसेज. जितने भी जगह पे मैंने रिक्वायर्ड डाला है सब जगह पे रेड कलर आ गया. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ HTML5, जिसमें आप रिक्वायर्ड अगर सबमिट बटन पे डालते हो, रिक्वायर्ड में तो जब तक आप कुछ वैल्यू नहीं पुट करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू दे दिया, फिर भी जब तक हर एक के लिए मैं वैल्यू नहीं दूंगी, स्टिल इट इज गोइंग टू गिव एरर. यहाँ पे एरर क्यों दिया? क्योंकि हमने यहाँ पे इसका टाइप जो दिया है ईमेल के लिए, इसका इनपुट टाइप ईमेल दिया है. सो इट इज गोइंग टू फाइंड आउट यू रिक्वायर एटलीस्ट एन @ सिंबल एंड डॉट. जैसे @ और डॉट मिल जाएगा, इट इज गोइंग टू रिमूव दैट एरर. और यहाँ पे भी रिक्वायर्ड डाला है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ डेट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंप्लीट देना पड़ेगा. ओके, सो लाइकवाइज यू कैन यूज अ रिक्वायर्ड. तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये फील्ड यूजर ने देना चाहिए, तो उसके आगे हम लोगों ने रिक्वायर्ड डाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने फोन नंबर जो फील्ड है, इसमें हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया है, मैक्स लेंथ. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? 10 कैरेक्टर्स ही एंटर कर सकते हैं. हाँ, 10 कैरेक्टर्स के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके, सपोज आई एम यूजिंग 1 2 3 8 9 एंड दिस इज 10th वन. इसके बाद मैं कितना भी टाइप कर रही हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू टेक इट. सो मैक्सिमम ओनली 10 कैरेक्टर इट इज गोइंग टू एंटर. तो हमने मैक्स लेंथ दे दिया, क्योंकि मोबाइल नंबर हमको चाहिए तो 10 कैरेक्टर के ऊपर हमको नहीं चाहिए. सो लाइकवाइज इट इज ओके. बट नाउ कंसिडर, अभी मैंने सबमिट किया, वैल्यू आ गया, कोई एरर नहीं. अब नेम में अगर मैंने ऐसा कुछ डाल दिया, गलती से मेरे से कुछ यहाँ पे क्या हो गया है, नंबर्स आ गए हैं. फोन नंबर में कुछ नंबर, कुछ अल्फाबेट डाल दिए. ओके, ये बराबर डाला है, ये बराबर डाला है. ये वाला फॉर्म इसने एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? नो मैम. नो, व्हाई नो? मैम फोन नंबर में नंबर ही रहना चाहिए और नेम में कैरेक्टर्स ही रहने चाहिए मैम. Right, it is giving here a number, here it is accepting a character. अब मैं submit पे click कर रही हूँ, it is not giving any error. So there is no validation at all currently. तो हमको validation चाहिए. Plus अगर फोन नंबर में भी अगर मैंने सिर्फ 3 ही कैरेक्टर या 5 ही कैरेक्टर डाले हैं, जबकि मोबाइल नंबर न 10 से ज्यादा होना चाहिए और 10 से कम भी नहीं होना चाहिए, तो हमने मैक्स लेंथ तो दे दिया, लेकिन मिनिमम की भी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 10 ही होना चाहिए. सो दीज आर सम रिक्वायरमेंट फ्रॉम आवर साइड.
तो ये जितने भी वैलिडेशन हमको करने हैं कि नेम में सेफ कैरेक्टर आने चाहिए, डिजिट्स नहीं चाहिए, फोन नंबर में 10 डिजिट्स होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए. सो दीज आर सम वैलिडेशंस वी हैव टू डू, दैट इज पॉसिबल विथ अ जावास्क्रिप्ट. तो इसमें एक खाली चेंज आपको जो करना है, आप जब फॉर्म डिजाइन करोगे तो अब तक हम इनपुट टाइप बटन लेते थे, जो यहाँ पे बटन दिख रहा है इसका टाइप हम बटन लेते थे, तो बटन पे ये वैलिडेशंस या रिक्वायर्ड फील्ड जो है ये वर्क नहीं करता है. व्हेन यू वांट योर फॉर्म शुड वर्क फॉर अ रिक्वायर्ड and for some validation, so instead of your input type button you have to use it as a submit. तो यहाँ पे मैंने input type button के बजाय submit ले लिया है. वैल्यू मतलब क्या कैप्शन चाहिए वो डाल दिया. ये one change you have to do. Second change, you have to write down all this code inside the form tag. अगर form tag में निकाल भी दूँ अभी डिजाइन में कुछ चेंज नहीं होगा, बट जब आप कोडिंग करोगे जावास्क्रिप्ट का तो कुछ चीजें वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है. सो फॉर दैट जहाँ पे आपका बॉडी के अंदर ये टेबल टैग शुरू हो रहा है, जहाँ से आपने डिजाइनिंग स्टार्ट किया है, वहां पे आपको यूज करना है फॉर्म टैग. एंड एट द फॉर्म टैग यू हैव टू लाइक वैलिडेट करना है. तो इसके लिए हमको यहाँ पे देना पड़ता है कि जो भी डेटा है वो रिटर्न हमको ट्रू करना है या फिर रिटर्न फॉल्स करना है. सो लाइकवाइज वी हैव टू यूज. सो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ऑन सबमिट. ऑन सबमिट जैसे हम ऑन क्लिक यूज करते थे, बटन के लिए हम मेथड यूज करते थे ऑन क्लिक, यहाँ पे हमको मेथड यूज करनी है ऑन सबमिट, जो हम मेथड लिखने वाले फॉर्म टैग के अंदर. सो ऑन सबमिट इक्वल टू डबल कोट के अंदर वी हैव टू राइट डाउन रिटर्न, और जो भी आप ऊपर फंक्शन का नाम लिखने वाले हो, सपोज हम लोगों ने फंक्शन का नाम जो भी आपको यूज करना है, सपोज हमने लिख दिया है वैलिडेट, तो आप जो भी फंक्शन है वो फंक्शन का नाम ऑन सबमिट, यह फंक्शन को आप रिटर्न करोगे, आइदर वैल्यू ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी. और यहाँ पे एंड में जाके हमने फॉर्म टैग को एंड कर दिया. तो ये डिजाइनिंग पार्ट में दो चेंज है. वन इज इनपुट टाइप बटन के बजाय इनपुट टाइप सबमिट लेना है. सेकेंड फॉर्म टैग के अंदर ऑन सबमिट इक्वल टू रिटर्न, और जो फंक्शन का नाम आप यूज करने वाले हो जावास्क्रिप्ट में वो लिखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट बॉडी पार्ट, डिजाइनिंग पार्ट. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ अ स्क्रिप्ट. जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं. ओके, सो हेड टैग हमने लिख दिया. हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट एंड स्लैश स्क्रिप्ट. ओके, अभी हम वन बाय वन जाएंगे. सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, जो हमने नेम यूजर से नेम लेने के लिए लिया है, आई वांट ओनली द कैरेक्टर्स इन दैट. ओके, तो कैरेक्टर्स जो है हम अब इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन. फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे क्या लिया है, वैलिडेट. तो ये और ये फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए. सो फंक्शन का नाम सेम हमने यूज कर लिया. इनसाइड दैट फंक्शन सबसे पहले हमको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीड करना है. सो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीड करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया. वेरिएबल a इक्वल टू document dot get element by id and t1 dot value. ओके, अब ये वैल्यू को हम क्या चेक करने वाले हैं, if now we are using one kind of regular expression. Okay, a dot, there is a inbuilt function which is called as the match function, जिसमें हम चेक करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आइदर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में, या फिर स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में. यानी हमने बोल दिया कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कैपिटल ए से लेके जेड तक कुछ भी डेटा आ सकता है, स्मॉल ए कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक कुछ भी डेटा आ सकता है. ओके, तो ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है t1 की, इस वैल्यू को मैच करेगा ये पैटर्न के साथ. लेकिन ये पैटर्न कहाँ से कहाँ तक मैच करना है हमको, स्टार्ट टू एंड. ओके, तो इसके लिए हमको ये लिखना पड़ता है, पैटर्न लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. इसको स्टार्टिंग और एंडिंग बताने के लिए इसको सिंबल यूज होता है. यानी ये हो गया हमारा पैटर्न. हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, इसके लिए हमने इसको
स्टार्टिंग में स्लैश लगा दिया, एंडिंग में स्लैश लगा दिया, ओके। एंड हियर वी आर टेलिंग कि उस टेक्स्ट बॉक्स की जो स्टार्टिंग है वो भी कैपिटल A to Z से होनी चाहिए या फिर स्मॉल a to z से होनी चाहिए, और एंड के लिए हम डॉलर यूज करते हैं। कैरेट इज यूज टू टेल इट इज अ स्टार्टिंग, डॉलर इंडिकेट टू टेल इट इज अ एंडिंग। मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स में कितने भी कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर जगह पे ये कैरेक्टर होने चाहिए, और ये कैरेक्टर एक से ज्यादा बार आ सकते हैं। जैसे ए जो है, ए ये रिपीटेड आ सकता है, 2 बार ए आ सकता है, 3 टाइम भी आ सकता है। सो वी हैव टू यूज अ सिंबल विच इज कॉल्ड एज अ प्लस। प्लस इंडिकेट द occurrence ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी फ्रॉम 0 टू मोर देन 1 टाइम इज पॉसिबल। ये समझ में आया अंदर का कैसे लिखना है? एक बार वापस बताओ। हेलो। यस मैम। ओके। यस मैम। या देखो क्या कर रहे हैं हम, पहले जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हमको यूजर से नेम लेना है, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम T1 है। ओके, सो यूजर ने T1 में जो भी डाला रहेगा वैल्यू, वो वैल्यू हमने रीड किया और एक वेरिएबल में स्टोर किया। अब हमको चेक करना है कि यूजर ने जो वैल्यू दी है व्हाट इज दैट वैल्यू। तो इसके लिए हमने एक इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है a.match। अब इसमें हमको कुछ पैटर्न जो है वो पैटर्न को मैच करवाना है कि इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स होने चाहिए। सो कैरेक्टर मतलब क्या, कैपिटल A to Z भी हो सकता है या फिर स्मॉल a to z हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया जिसमें हमने लिख दिया इसमें जो डेटा है वो मैच किससे होना चाहिए, आइदर कैपिटल A to Z विदाउट स्पेस में दे रही हूँ या फिर स्मॉल a to z, इसमें से कोई भी कैरेक्टर अगर आता है तो चलेगा। ओके, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, पूरे टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ यही कैरेक्टर होने चाहिए। सो वी आर यूजिंग फर्स्ट स्लैश और स्लैश। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है, सॉरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसके आगे और पीछे हमने स्लैश डाल दिया। वाले गिराक में आरी लेके जाना बाद में रेगुलर एक्सप्रेशन वी आर टेलिंग। अब 90 रुपए इसको की स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, इसके लिए हमने कैरेट यूज किया। एंडिंग पॉइंट जो बताना है उसके लिए हमने डॉलर सिंबल यूज किया। यानी हम बता रहे हैं उस टेक्स्ट बॉक्स के स्टार्टिंग से लेके तो एंडिंग तक जितनी बार भी कैरेक्टर आएंगे स्टार्ट से लेके एंड तक, हर जगह पे सिर्फ ये वाले अगर कैरेक्टर है तो ही हमको उसको एक्सेप्ट करना है। और अब ये कैरेक्टर कितनी बार आ सकता है, जैसे ए है ये एक बार आ सकता है, ए से एक से ज्यादा बार भी आ सकता है या फिर 0 टाइम भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जो कैरेक्टर ये आने ही चाहिए। जैसे ए से जेड सब आने चाहिए क्या? नो, जैसे BHAVN है, भावना में जेड नहीं आता है, एक्स नहीं आता है, सो वी आर यूजिंग इट अ प्लस कि कुछ नाम में ये कैरेक्टर मल्टीपल टाइम आ सकते हैं या फिर 0 टाइम भी आ सकते हैं या फिर 1 टाइम या 2 टाइम। सो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर मैचिंग फॉर अ कैरेक्टर। अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इसको मैच कर गई तो हमको कुछ करना है क्या, करना है क्या कुछ? नहीं मैम। कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, यही चाहिए कि कैरेक्टर ही डेटा आना चाहिए। तो इसके लिए हमने इफ के बाद कुछ नहीं लिखा, देन वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। लेकिन अगर इसको मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें किसी ने सिंबल्स डाल दिए हैं, किसी ने नंबर्स डाल दिए हैं, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कैपिटल A to Z और स्मॉल टू A to Z, अगर ऐसे कोई कैरेक्टर आते हैं देन दैट टाइम वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट। तो एक्सेप्ट नहीं करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक अलर्ट देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे डाल दिया अलर्ट, यहाँ पे डाल दिया प्लीज एंटर कैरेक्टर ओनली फॉर नेम। एक अलर्ट डाल दिया। अलर्ट डालने के बाद सिर्फ इतना दिखाती हूँ, फिर आगे क्या चीजें क्यों ऐड करनी वो भी मैं बताती हूँ। मैम यस मैम वो स्पेस लेगा क्या मैम? विथ स्पेस? मैम अब नाम इफ सपोज राहुल बत्तीन हो तो राहुल के बाद स्पेस लेके फिर बत्तीन चेक आएगा क्या करते ना, मैम? देखो मैंने यहाँ पे इसके बीच में स्पेस नहीं डाला है अभी तक, सो विल चेक आउट, है ना। 1 by 1 वी चेक एंड देन वी मेक चेंजेस इन आवर कोड। तो यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे हमने कुछ डेटा डाल दिया सपोज एंड समथिंग लाइक दैट। एंड सबमिट पे क्लिक किया।
ओके, सो उसने यहाँ पे एरर दे दिया हमको कि प्लीज इंटर कैरेक्टर ओनली। ओके, मैंने जैसे ओके किया, बट व्हाट हैपन, क्या हुआ? एरर मैसेज दिया, लेकिन और क्या हुआ? पहले का डेटा इरेज। बाकी भी सब टेक्स्ट बॉक्स का डेटा चला गया। क्या होना चाहिए था एक्चुअल में? फोन नंबर और ईमेल का डेटा जाना चाहिए था क्या? नो मैम। नहीं, वो एज इट इज रहना चाहिए था। ओके, सो ये चीज वर्क करने के पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है रिटर्न फॉल्स। इससे क्या होता है कि एज इट इज फॉर्म रहता है, सिर्फ अलर्ट मैसेज देगा, लेकिन फॉर्म के ऊपर जो भी डेटा है जो आपने फिल किया है वो एज इट इज रहेगा, वो जाएगा नहीं। ओके, सो इट इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न समथिंग, और जब आप रिटर्न ट्रू करोगे तभी वो डेटा सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे सेम वैल्यूज हम लोग कुछ तो डालते हैं। ओके, now when I am clicking submit, it is giving a error message, but the values are kept. Okay, value as it is रही, लेकिन नेम की वैल्यू एज इट इज रहनी चाहिए थी क्या? जहाँ पे एरर है वो वैल्यू चाहिए थी क्या हमको, कि वो रिमूव होनी चाहिए? जिसमें एरर है वो एरर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ब्लैंक होनी चाहिए। मतलब सिर्फ ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक होनी चाहिए, बाकी सब एज इट इज रहनी चाहिए। सो ये कोड में जाके और एक चीज चेंज क्या करना पड़ेगा हमको, कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसमें एरर है वहां की वैल्यू को जाके क्या कर दो, ब्लैंक कर दो, बाकी सब रहने दो। ओके, सो इसको रिफ्रेश किया हमने, सबमिट किया, ओके किया, सिर्फ फर्स्ट वाला ब्लैंक हो गया जिसमें एरर था और चीज आ गई। ओके, अब हम स्पेस के लिए चेक करते हैं एंड सबमिट किया। तो यहाँ पे उसने स्पेस, हम लोगों ने यहाँ पे खाली क्या दिया हुआ था, कैपिटल A to Z विदाउट स्पेस स्मॉल a to Z। तो इसके लिए क्या किया उसने, स्पेस जब मैंने दिया तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, सो यू नीड टू गिव अ स्पेस हियर। दोनों कैरेक्टर के बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, स्पेस प्रोवाइड कर दोगे। एंड नाउ व्हेन यू क्लिक, ओके, व्हाई इट इज स्टिल गिविंग इट? मैम उसको उसमें नहीं कर सकते, एंड ऑपरेशन देके करना पड़ेगा मैम उसको। ओके, फिर से तो हम करना लोग और एक यहाँ पे एंड देके और स्पेस का जो सिंबल रहेगा वो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू गिव द फर्स्ट। अगर आपको सिर्फ कैरेक्टर चाहिए तो कैसे करना है। नाउ सेकेंड वन इज आर नंबर, कि यहाँ पे हमको चेक करना है कि इसमें नंबर ही होने चाहिए, अल्फाबेट्स नहीं होने चाहिए। सो सेम लाइकवाइज यू कैन डू दिस। तो इसको यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल ले लेती हूँ एंड हियर वी विल ऐड द सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा फोन नंबर के लिए, द वैल्यू इज T2, सो वी विल यूज हियर T2। ओके, T1 के लिए हमने ये पूरा कोड जो है वो कर दिया है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही हमको दूसरा कोड क्या करना है T2 के लिए, यानी B के लिए। ओके, सो अगेन वी आर यूजिंग दिस। अब इसके एक के अंदर भी एक लिख सकते हो, या फिर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो पूरा एक पार्ट अलग से लिख दो इफ एंड एल्स का। एंड नाउ यू कैन राइट डाउन अ सेकेंड पार्ट जिसमें हम चेक कर रहे हैं बी डॉट मैच। अब हमको मैच क्या करना है, जैसे हमने A to Z मैच किया, लाइकवाइज वी हैव टू मैच 0 to 9। सो सेम यू कैन यूज स्लैश एंड स्लैश, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट starting with caret symbol and ending with plus and dollar symbol। पूरा सेम है, खाली बीच में A to Z के बजाय you have to write down 0 to 9। and if it is this, अगर ये मैच हो गया then we don't want to do anything, but नहीं हो रहा है, so again इसको copy paste किया and whatever the alert you want to give, please enter like
please enter digits only for फोन नंबर. T1 के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 एंड देन रिटर्न false. So suppose we have written here, okay, space हमने अभी तक किया नहीं है, वो हम बाद में करते हैं. Okay, and now suppose we have given here some character and some number, and then click on submit. So it is giving that please enter digits only for phone number. Okay किया, value क्या हो गई, remove हो गई. So it is working now fine. Now थर्ड वैलिडेशन क्या है. सपोज हमने अभी सब नंबर्स डाल दिए, बट मैंने लेंथ जो है पूरा 10 नहीं किया है. आई हैव जस्ट गिवन अ 5 डिजिट्स. ओके, तो भी उसने क्या किया, ले लिया. नाउ थर्ड वैलिडेशन, व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू चेक द लेंथ, कि जो लेंथ है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का वो 10 ही होना चाहिए. अगर 10 से लेस है तो उसने क्या करना चाहिए, हमको एरर मैसेज प्रोवाइड करना चाहिए. सो वापस मैंने इसको कॉपी कर लिया, कोड को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे बी डॉट मैच के बजाय वी विल यूज बी डॉट द प्रॉपर्टी इज लेंथ. ओके, अगर इसकी लेंथ जो है ये 10 डिजिट से लेस है, वी हैव टू राइट डाउन प्लीज एंटर 10 डिजिट्स फॉर फोन नंबर, और फोन नंबर कैन नॉट बी लेस देन 10 डिजिट्स, जो भी आपको वैल्यू डालनी है वो. और आपको लग रहा है कि इसके बाद ये डिलीट, मतलब वैल्यूज जो उसने डाली है वो रिमूव नहीं होनी चाहिए, तो आप ये निकाल सकते हो. आपको लगता है कि वैल्यूज जो है वो ब्लैंक होनी चाहिए, तो आप इसको रख सकते हो. सो डिपेंड ऑन योर चॉइस व्हाट यू वांट. मैम. यस मैम वो 10 से ज्यादा भी लेगा ना मैम फिर? नहीं ना, क्योंकि हमने मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी जो है ना डियर, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, फोन नंबर के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स लिया तो मैक्स लेंथ क्या कर दिया हमने, 10 डाल दिया. तो 10 से ज्यादा ऐसे भी वो एंटर नहीं कर सकता है, लेकिन 10 से लेस एंटर कर सकता है. तो खाली लेस के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, उसको चेक किया है. ओके, एंड नाउ व्हेन आई एम क्लिकिंग, ओके वी हैव टू दिस, व्हाट हैपेंड. ओके, गलत हो गया. इसमें ये जो कोड है ये कहाँ पे चाहिए था, इफ है तो ये कोड रन होना चाहिए, राइट. अगर 10 डिजिट के नीचे है तो ये होना चाहिए, या एल्स के लिए हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, तो यहाँ पे उसने मैसेज दिया प्लीज एंटर 10 डिजिट फॉर फोन नंबर, उसको ब्लैंक किया. आपको लग रहा है ब्लैंक नहीं करना है, सो यू कैन जस्ट रिमूव दिस वैल्यूज फ्रॉम हियर. ओके, इसके अलावा देखो अभी यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड ये फील्ड एज इट इज यहाँ पे लिया हुआ है. अगर आपको लग रहा है कि ब्लैंक भी आपको खुद को चेक करना है, ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा लाइकवाइज. और आपको सबसे पहले आप पहले क्या चेक करोगे, इसके मैच के पहले, कि वो अगर ब्लैंक है तो उसने एरर देना चाहिए. यानी अगर मैंने यहाँ से रिक्वायर्ड हटा दिया फर्स्ट नेम के इधर से, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगी, इसको रिफ्रेश किया, तो ये यहाँ पे सबमिट पे, यहाँ पे उसने क्या किया, रिक्वायर्ड निकाल दिया, इसलिए उसने एरर नहीं दिया. सबमिट पे खाली कहाँ पे एरर दिया, फोन नंबर के लिए एरर दिया. मेल हटा दूंगी तो वहां पे एरर देगा, लेकिन नेम का रिक्वायर्ड हमने हटा दिया है. तो अगर आपको चाहिए कि वो भी आना चाहिए बट विदाउट रिक्वायर्ड, व्हाट यू हैव टू डू हियर, हियर यू जस्ट हैव टू चेक अगेन इफ ए इज इक्वल टू, अगर वो ब्लैंक है तो उसने क्या करना चाहिए, कुछ तो मैसेज प्रोवाइड करना चाहिए. नहीं है तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एल्स इफ, अगर डेटा है तो फिर ये चेक होगा, और अगर डेटा है ही नहीं तो हमको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, अलर्ट एंटर डेटा फॉर नेम, likewise you can give.
Okay, so depend on you how you want a required or you want to do the validation at your end. Again, one thing you can add here, मुझे लग रहा है कि देखो जैसे तीनों रिक्वायर्ड फील्ड है, तो आप अगर कोई फॉर्म जब एक्चुअली भरते हो तो जो रिक्वायर्ड फील्ड होता है उसके आगे से स्टार करके आता है, राइट? ऐसे रेड कलर में स्टार आता है ना, सो विच इंडिकेट दीज आर द रिक्वायर्ड फील्ड. तो आप यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं? ऐसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टार ऐड हो जाना चाहिए. क्या कर सकते हैं हम लोग? एनी आइडिया? समझ में आ रहा है क्या व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, ma'am. So how we can add a star here? प्लस जैसे मैंने अलर्ट लिया, जैसे यहाँ पे अगर मुझे कुछ एरर देना है तो अलर्ट में आ रहा है, अलर्ट के बजाय वो एरर मैसेज इस टेक्स्ट बॉक्स के आगे लिख के आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, अलर्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे आगे वो मैसेज आना चाहिए. सो दिस थिंग यू कैन फाइंड आउट कि if you want to make such kind of registration form where you want to add such kind of star mark and whenever the error is coming for like फोन नंबर के लिए अगर हमने यहाँ पे कुछ डेटा जैसे है, तो यहाँ पे देखो आप जो डेटा है हमारा, तो जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो एरर मैसेज यहाँ पे आ रहा है अलर्ट में. व्हाट आई वांट, अलर्ट मैसेज जो है ना इस टेक्स्ट बॉक्स के आगे ही लिख के आना चाहिए कि यू हैवंट एंटर द 10 डिजिट और प्लीज एंटर कैरेक्टर ओनली. ओके, तो जस्ट बाय यूजिंग अ प्लेस होल्डर यू कैन डू दैट. तो ये चीजें अलग अलग करके देखो. आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक करो गूगल के ऊपर, कोई एक जीमेल का या कोई कंपनी का, कि कैसे क्या क्या चीजें वो लोग प्रोवाइड करते हैं. तो एज इट इज क्या हम रिप्लिका बना सकते हैं क्या, कुछ चीजें मैच कर सकते हैं क्या? सो यू कैन फाइंड आउट दैट थिंग एंड ट्राई दिस वन. तो मजा आएगा आपको करने में. प्लस एक आप है ना यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हो. अगर आपको लगता है ना ये बटन है, ये बटन के ऊपर हमको इमेज ऐड करना है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द CSS. जैसे अगर हमको ऐड करना है, अभी हम जैसे लॉगिन वाला फॉर्म लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये लिया हुआ है, इनपुट टाइप लिया हुआ है स्टाइल के लिए. तो जैसे इनपुट टाइप बटन है, तो यहाँ पे हमने स्टाइल टैग ऐड किया था और इनपुट टाइप बटन और बैकग्राउंड कलर दिया था. तो बैकग्राउंड कलर के बजाय आप प्रॉपर्टी जो है ना बैकग्राउंड डैश इमेज, ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो वहां पे. एंड यू कैन पुट द URL ऑफ योर इमेज. तो आप बटन के ऊपर कोई एक इमेज भी ले सकते हो. अभी कोई इमेज है क्या यहाँ पे हम चेक करते हैं इसके अंदर. यस, SNJB के नाम के कोई इमेज है. तो SNJB डॉट कौन सा है, JPG एंड JPG. और इसको अगर हम रन करते हैं ये वाले कोड को, ओके, तो इमेज बड़ा है इसके लिए वो दिख नहीं रहा है. सो यू कैन लाइक सेट द हाइट एंड विड्थ ऑल्सो. इसका अगर हमने ले लिया लाइक बैकग्राउंड डैश साइज और हमने कुछ दे दिया, सपोज 300 पिक्सल का दे दिया. एंड हाइट देखते पहले वर्क होता है कैसे. अरे कहाँ पे, ओके, हाइट डाल दिया सपोज 150 पिक्सल. एंड यू कैन सी इमेज जो है वो वहां पे आ जाता है. तो आप हाइट विड्थ या फिर छोटे